السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برداشت گروپ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے صدر صاحب کا حیدرآباد میں آج آخری دن ہے، کل آخری دن ہے، تو ہمارے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کو ہم نے اپنے ساتھ اپنے قریب لا کر ان کے اپنے خیالات کو ہم نے اپنے کیمرے میں کیچ کیا ہے۔ آج ہمارے گروپ کی ایک بہترین مشہور و معروف بارکس کی ایک شخصیت جو ہمارے صدر صاحب کے بچپن کے ساتھی اور ان کے کلاس میٹ، سینئر جرنلسٹ اور میرے بہت قریب میرے بھانجے جناب حبیب علی بن محمد الجیلانی، ہمارے گروپ کے ایک بہترین ممبر، آئیے ہم آپ سے ان کی ملاقات کرتے ہیں۔ حبیب علی، اہلاً و سہلاً، برداشت گروپ میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ سے میں کیا مخاطب رہوں، آپ خود ایک جرنلسٹ ہیں جس پہ مجھے فخر ہے، ہمارے برداشت گروپ کے ساتھیوں کو فخر ہے۔ آئیے اپنی جرنلسٹ جو آپ ہیں، کہاں سے اور کیسے آپ کی شروعات ہوئی، ہم آپ کے زبانی سننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ جب اسکولنگ کا دور تھا میرا، اسی پیریڈ میں شاید 9th یا 10th کی کلاس سے جی، مجھے اس دور میں کچھ مذہبی جلسے ہوتے تھے، اس جلسوں کی جو ہے جی بالکل رپورٹنگ کرنے کا آغاز ہوا۔ وہ کرتے ہوئے میں خوننامہ کا اخبار تھا، روزنامہ اس میں دیتا تھا، تو جی ایم عروج صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے میری ہمت افزائی کی جی، اور مجھے لکھنے کا موقع ملا وہاں سے۔ اچھا، اس کے بعد دکن نیوز میں ہم کام کیے۔ جی، ویسے اصل صحافتی زندگی کا جو آغاز میرا ہے وہ 1981 سے ہے، جب میں نیوز ٹرسٹ آف انڈیا میں جوائن کیا تھا۔ اس کے ایڈیٹر تھے جناب عارف الدین سلیب صاحب۔ جی، انہوں نے مجھے نکھارا، ایک جس طرح ایک بولتے ہیں بندر پتھر کو تراشا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے مجھے تراشا۔ جی، اور وہ شروع سے ہی بولتے تھے حبیب میں جو ہے بہت خوبیاں ہیں، کچھ کر سکتا ہے، مگر تھوڑا سا تراشنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ صرف 4-6 مہینے کے اندر ان کے ساتھ رہ کے میں جو ہے الحمدللہ اتنا ہوگا۔ مجھے اسی دور میں 2-3 میری رپورٹنگ اہم واقعات جو تھے اس میں یہ کہ 1982 کا جی، دسمبر کا مہینہ تھا، جو الیکشن کا پیریڈ تھا یہاں پر۔ جنوری میں الیکشن میں پہلی مرتبہ کانگریس کے بجائے تلگو دیشم رولنگ میں آئی تھی، تو اس مرتبہ 3-4 ایسے واقعات تھے جو خود میرے لیے جو ہے آج تک یادگار ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک ہے وہ مسز گاندھی کے ساتھ بات کرنے کا موقع، جبکہ میں ابھی داڑھی مچھی کا پتہ ہی نہیں تھا اس وقت جو آغاز کیا تھا۔ جی جی، ایک مرتبہ 22 دسمبر 1982 کو مسز گاندھی حیدرآباد میں آئی تھی اور الیکشن کے 2 کیمپیننگ سے، ایک امبرپیٹ گراؤنڈ پر اور دوسرا بھارت اسکاؤٹ گراؤنڈ پہ لیبرٹی میں، وہاں پہ مخاطب کرنے پر جب ایئرپورٹ واپس جا رہی تھی، میں ایئرپورٹ پہ مسز گاندھی کو سی آف کرنے جب جا رہے تھے، میں گیا، بالکل بچہ تھا، میڈیا والوں کو ایک دور چیئرز فراہم کیے گئے تھے۔ اس وقت مسز گاندھی کے ساتھ علی صدیقی صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے داماد کاروان سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ وہ مسز گاندھی سے بولے، میڈم میرے داماد خلیل کے پاس کوئی الیکشن کیمپیننگ کو نہیں ہے، ایسا رٹھا پکڑ کے مسز گاندھی کا لے آ کے سائڈ میں بولے۔ تو اسی وقت اندرا گاندھی نے ایسا اشارے سے دربار سنگھ چیف منسٹر پنجاب، اچھا، شیوراج پاٹل جو اسپیکر لوک سبھا اور مرکزی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، اس وقت وہ مرکزی مملکت وزیر پیٹرولیم تھے، ان کو بلایا۔ پی شیو شنکر مرکزی وزیر پیٹرولیم بلا کے خلیل کے ایریے میں جا کے آپ لوگ کیمپیننگ کرنا۔ تو اسی وقت میں بھی بچوں کی طرح جیسا پیروں میں سے گھس کے، کیا عمر تھی ہوں گی آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں 16-17 سال کی عمر تھی۔ جی، ایسا میں اندر چلے گا، جا کے مسز گاندھی سے میڈم بول کے ایسا بولتے فوری پلٹی وہ اندرا گاندھی، ادھر سے پولیس والے آ کے میرے کو پکڑ لی۔ اندرا گاندھی سے ملاقات ہمارے برداشت گروپ میں ایسی بھی ایک شخصیت ہے جس پہ ہم ناز کرنا چاہیے کہ اندرا گاندھی جو ہمارے ملک کی وزیر اعظم، اور پھر اس وقت اس عمر میں اس کے قریب جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سیکورٹی والے کہ مجھے فوری پکڑے لینے تو مسز گاندھی چھوڑو بول کے بولی، ایسے اشارے سے بلائی، میں گیا جا کے، جی، ہاں بولو، بولا بس الڑ پنے، بولا میڈم آپ کو کیا امید لگتی ہے یہاں سے؟ یہ سوال کیا تو ہمیں بہت اچھی امید ہے۔ بولا کتنے سیٹ جیت رہے؟ تو ہم اچھی طرح سے جیتیں گے، بس یہ ہو چلے گئی۔ بس جیسے باہر نکلا، پی ٹی آئی کے یہاں پر چیف تھے شیام راؤ ہرنور، جی، وہ فوری مجھے بولے کیا ہوں میں، کیا بات کرے بیٹا، بولے تو میں یہ بولا، تو
वहाँ से हम लोग वापस आ गए। खैर इत्तेफाक से चूँकि वो टाइम 9 बज गया था रात के, उस वक्त वो टाइम पे सर्विस हमारी नहीं जाती थी। अच्छा अच्छा। लेकिन श्यामराव हनुसा पीटीआई से वो न्यूज़ मैं जो बोले लिए और दूसरे दिन पूरे अखबार की हेडिंग कैप्शन वही रहा। अच्छा। तो वो मेरे लिए एक गेटवे था। उसके बाद सेक्रेटरीट में जो है जूनियर जर्नलिस्ट को आने देते, वो तो हम बच्चे ही थे भी, उस जर्नलिस्टों में शुमार भी नहीं होता था जी। मगर श्यामराव हनूर और हिंदू के एक रिपोर्टर थे सीनियर, GK रेड्डी साहब, उन्होंने ये देख के मुझे पीठ थपकी और सेक्रेटरीट के अंदर मेरा दाखिला दिलवाया। सेक्रेटरीट के प्रेस रूम में उस वक्त मैं जाके बैठता था, जबकि मैं समझता हूँ 20 साल या 25 साल के एक्सपीरियंस वाले भी उस वक्त तक सेक्रेटरीट के मीडिया रूम में नहीं आते थे। और उस वक्त एस जयपाल रेड्डी जो कांग्रेस के मुल्क के बड़े लीडर थे, वो तकरीबन ऑल्टरनेट डे सेक्रेटरीट को मीडिया वालों से इंटरेक्ट करने के लिए आते थे वहाँ पर जी। तो वो जो सफ़र शुरू हुआ तो उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह रुकने का मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई बहस साबिक़ा वज़ीर आज़म हैदराबाद है, नारायणगढ़ में एक स्कूल में उनका एक प्रोग्राम था। कुछ ताख़ीर थी तो हमने जो है ऑर्गेनाइजर क्या कि हम लोग कुछ सवाल करते। मैं था, मेरे साथ एक और एक ज़ैनुल आबिदीन मेरे साथी जो भारत न्यूज़ से वाबस्ता थे। इत्तेफ़ाक़ी बात है हम दोनों की जोड़ी के जैसा बन गया था जी। तो मोरारजी देसाई से हमने जाके बात की तो उनसे जब हम बात कर रहे थे तो मेरे साथी जो है बिल्कुल ऐसे कि बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मोरारजी देसाई का एक वाक़या मशहूर था कि वो अपना पेशाब पी के खुद जो अपना इलाज करते थे और वो मशहूर भी कर दिए थे जी। तो मैंने जाके उनसे वो सवाल किया कि आप कितने बीमार थे, उससे फ़ायदा क्या हुआ। मुझे सवाल क्या करना समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने ये सवाल कर दिया। तो उन्होंने बैठो बोल के पहले बिठाया, हमारे को बिठा के पानी मंगवाया, पानी पिए। उसके बाद बोले मुझे 6 बीमारियाँ थी और वो उससे मेरा जो पूरा इलाज हुआ है जी। तो खैर वो तो उनका बड़कपन था, वो हमारे उस सवाल को जो नाराज़ हो जाओ, लेकिन मुझे एक अजीब सा लगा था पेशाब और उससे इलाज जी ये समझ से बाहर रहा जी जी। और उसी दौरान दिसंबर में जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, एक और वाक़या जो मोइन फारूकी साहब एडिटर अंगारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर थे, उनके घर पे कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर्स का जो है खैर मकदमी तकरीब थी, जिसमें मोहसिना खुदवाई मरकज़ी ममलिकत वज़ीर लेबर जी और प्रोफेसर इश्तियाक आबिदी जो मॉडर्न बेकरीज के चेयरमैन और जो जॉइंट सेक्रेटरी कांग्रेस थे। प्रोग्राम शुरू होने में कुछ ताख़ीर थी। उस वक्त शहर के पूरे सीनियर यानी उस्ताजुल असातिज़ा सहाफ़ियाँ वो लोग मौजूद थे, जिसमें जिगर साहब क़िबला भी मौजूद थे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में ताख़ीर थी, तो मैंने ज़ैनुल आबिदीन दोनों मिलकर मोइन फारूकी साहब से बोले चचा हम कुछ सवालत करना चाहते हैं मैडम से। हाँ करो बेटा बोल के उन्होंने बोले। तो पहला सवाल इत्तेफाक से मैं मिसेस मोहसिना खुदवाई से किया था। वो यह था कि जिस दिन ये मीटिंग थी उससे एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक बैनर आइटम आया था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, कि कुछ मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट मिसेस गांधी से मिलने दिल्ली उनके घर गए तो उन्हें झिड़कियाँ देते हुए बढ़ा दी। तो अखबारात का बैनर आइटम वही था पूरा। तो मैं वही सवाल किया, बोला मैडम आप मुस्लिम नुमाइंदे हैं यहाँ पे इस वक्त बन के आए, लेकिन मिसेस गांधी कल मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को जो मुस्लिम मसाइल पर बात करने गए थे उनको झिड़कियाँ दे के बढ़ा दी। वो मेरा सवाल था। मिसेस मोहसिना खुदवाई के चेहरे पे पसीने छूट गए। पसीने पहुँचते उन्होंने कहा कि वो मुझे अभी पता नहीं। तो बर्जस्ता हालांकि कोई प्लानिंग नहीं, बस मैं ये बोला आप मरकज़ी वज़ीर हैं, कैबिनेट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको ये पता नहीं है, तो आपके सेक्रेटरी आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि फिर आप फिर कई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये सवाल पे तो वो लाजवाब भी कोई जवाब नहीं दी। उसके साथ ही मेरे साथी और एक जो ज़ैनुल आबिदीन उस वक्त भारत न्यूज़ में थे, बादशाह वो अमेरिका चले गए थे, उन्होंने एक सवाल किया। उस वक्त बॉम्बे में पावर लूम के लेबर्स की स्ट्राइक 2 साल से बहुत बड़ी चल रही थी। वो सवाल के दोनों सवालों पे वो लाजवाब ही कोई जवाब नहीं दे सकी। तो जब भी मोइन फारूकी साहब ने उस सिलसिले में मुनक़ते कर दिया। मगर उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि जब हम उठे निकल रहे थे महफिल ख़त्म होने के बाद, तो जिगर साहब, जिगर मुरादाबादी नहीं, रोज़नामा सियासत के जिगर, रोज़नामा सियासत के जॉइंट आबिद अली खान के साथ बानी एडिटर, उनका नाम ही जिगर था। हाँ, महबूब हुसैन जिगर। अच्छा, उनका लक़ब नाम पूरा उनका महबूब हुसैन जिगर था। शायर थे वो भी? नहीं, सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी। उनके सामने अच्छे सहाफ़ी ठहर नहीं सकते थे जी। और उनके हाथ पे जो तरबियत हासिल किए वो आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी बने हैं। तो उन्होंने मेरे और जैन के हाथ ऐसा खांदे पे हाथ रख के क्या नाम पूछे, हबीब कहाँ से, न्यूज़ ट्रस्ट। फिर जैन से पूछे कहाँ पर होगा, ये मसला ख़त्म। 4 या 5 दिन के बाद जब मैं अपने ऑफिस गया भारत न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आरिफुद्दीन सलीम साहब मुझसे पूछे
अरे क्या है मियाँ, क्या तो भी कर डाले तुम आखिर। मेरे को हैबत शुरू हुई, मतलब हुआ क्या आखिर? तो बोले जिगर साहब से क्या बात करे तुम? बोला ऐसा ऐसा सवाल वहाँ परसों हुआ था, ऐसा पूछे हम। अच्छा बैठो बैठो। बोले एक बच्चा रामलू बोल के था हमारे पास उस दौर में, रामलू जल्दी चाय ला, बोले चाय बिस्किट, वो बिस्किट खा। बोले चूँकि मैं उनके सवाल से हैबत में आगे पसीना पसीना हो गया था मैं, कि क्या बोलने वाले हैं? क्योंकि आरिफुद्दीन सलीम का बहुत बड़ा मुकाम था। खुद न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक हमारा न्यूज़ ट्रस्ट ऑफिस नहीं था, बल्कि पूरे कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स आके वहाँ पे आरिफुद्दीन सलीम के पास बैठते थे, जिसमें ए मदन मोहन, एम बागा रेड्डी, अहमद शरीफ, ये लोग पूरे आके वहाँ बैठते थे। और उसके सांगी जो अब आजकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके मालिक थे जो है, पहले वो छोटी सी कोठी में दुकान थी रामचंद्र सांगी, वो पूरे आके बैठते थे जी। तो आरिफुद्दीन सलीम का उन्हें ये बोलते तो मुझे बहुत हैबत हुई। आप इतने दूर निकल गए हैं सहाफ़त में कि हमें फ़ख्र है कि आप एक हमारे बर्दाश्त ग्रुप की एक बेहतरीन मेंबर हैं। मैं आपसे क्या सवाल कर सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ बचपन की यादें और अपने साथियों के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसे और किन साथियों के साथ गुजरा। जी है, बोलिए। आपके जो साथी बर्दाश्त ग्रुप में आज आपको मिले हैं, ये आपके बचपन के साथी हैं, आपके बचपन के क्लासमेट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त का बारकस और उस वक्त के साथी और उस वक्त का असातिज़ा और वो माहौल, उस ताल्लुक़ से, क्योंकि आप एक दोस्तों में एक हम उम्र दोस्त हैं यहाँ पर, और मैं तो देखा नहीं वो, मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ तफसील से आपका बचपन, आपका स्कूल और आपके साथी और आपके शोबे दुनिया। हाँ, असल हमारी बुनियाद शोबे दुनिया है, शोबे दुनिया इदारे। अल्लाह यग़फ़िर, अल्लाह अवध बिन सैयद बल्लज़ा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब, आमीन। उन्होंने उनके हाथ की जो बेत की छड़ी थी, आज हम जिस काबिल ठहरे हैं, वो बेत की छड़ी का बड़ा दखल है जी। सुबह 6 बजे से जब बाहर टेबल आके पड़ जाता, उसके बाद अवध भाई आते, चप्पल करके वहाँ चप्पल छोड़ देते, तो उसके बाद पूरा मदरसा बगैर चप्पल के 8:30 बजे तक मुसलसिल जी वहाँ ठहरे। तो इधर नाले तक मतलब पूरी नज़र, इधर बाजार तक पूरी नज़र, इधर ग्राउंड में नज़र, कौन बच्चा कहाँ जा रहा, क्या कर रहा। सुभान अल्लाह। बुला के सज़ा जो देते, सज़ा भी देते, उसके बाद में उनके साथ इनाम भी देते थे। उनके पास इनाम क्या होता था? टॉफ़ियाँ, गोलियाँ रखे हुए रहते थे। जब उनका मूड आया तो बुला के इनाम देते थे। और उस वक्त हमारे असातिज़ा में अल्लाह यग़फ़िर साले बासलेमान साहब, शेख अब्दुल्ला बावज़ीर और चुन्नू नवाब, ये शोबे दुनियात के ख़दीम असातिज़ा थे। अच्छा। और उस वक्त जो शोबे दुनियात का माहौल था, अब वो शायद हमारी आंखें तरस रही है। और अक्सर और बेशतर रबीउल अव्वल के महीने में हम जो आंसू बहाते हैं उन मंदिर को देख के, जो रबीउल अव्वल के महीने में 5 दिन तक शोबे दुनियात का 8 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल तक जो मंजर रहता था जी, एक जश्न का माहौल रहता था पूरा जी। और उसके लिए यकुम रबीउल अव्वल से अल्लाह यग़फ़िर साले बासलेमान साहब बच्चों को तक़रीर लिख के देके सिखाते थे, तक़रीर करने का तरीक़ा। हम जो आज बात कर रहे हैं या बोल रही है, असल में पूरी शोबे दुनिया की देन है। वो एक हमारे लिए एक जामिया, एक मदरसा ने बल्कि जामिया था, वहाँ से हम बहुत कुछ सीखे जी। और वहाँ पर जो हमारे दोस्त अहबाब थे, अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुलूस और मोहब्बत जो उस वक्त बचपन में रहती, आज भी वो, हालांकि मीलों दूर मुख्तलिफ हिस्से बटे हुए, लेकिन आज भी है। वो सिर्फ शोबे दुनिया की बदौलत, हालांकि सर गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़े, वहाँ से भी दोस्त, लेकिन वो जो ताल्लुक़ शोबे दुनिया का था, आज भी वो बाकी बरकरार है। शोबे दुनियात में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ सुबह फजर के साथ शुरू होती थी। उस पर भी जो है पूरी अवध बिल्लाज़ा एक वाहिद शख्सियत थे जो हर चीज़ पर नज़र रखते थे जी। खसीद बुर्द शरीफ की एक में 6 जमातें थी हमारे मदरसे के अंदर जी। और रोज़ाना एक जमात पढ़ती थी। सुबह का मदरसा अलग, मसाइया मदरसा अलग, शाम का। वो जो हमारी तरबियत मिली, आज हम देखते हैं कि अच्छे वो असातिज़ा जो हमारे पढ़ाए, आज बड़े बड़े उलमा या बड़े बड़े डॉक्टरेट के भी असातिज़ा वो चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं जो वो लोग इब्तिदा में हमारे पढ़ाए थे। उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल की जब बात आई, हम स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे हमारे अल्लाह सैयद अब्दुल्ला बिन अली बारकिन साहब, जो आज भी माशाअल्लाह ताला से रखे, तवील उम्र अता फरमाए। उनका भी हमने इंटरव्यू लिया था, बारकिन साहब का, मैं अकेला था जब,
تو بہرحال ان سے بھی ملاقات ہوئی. آپ کے بچپن کے آپ کے جو کلاسمیٹس ہیں ان کے کچھ نام بتائیں آپ, جو ساتھی تھے آپ کے جو آپ کو یاد ہیں. یحییٰ ناصر قریشی ہے جی. شیخ محمد زبیدی بن علی زبیدی ہیں جی. فضل ہیں جی. اور طاہر بصراوی طاہر بن حسین بصراوی فٹ بال پلیئر. بہت سارا تو ایسے برسوں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اب کچھ عرصے سے برداشت گروپ کے توسط سے بہت ساروں سے جو ہے تعارف ہوا ہے ہمارا. میں اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا جہاں پر بات آ گئی ہے کہ برسوں سے اسی کو لے کے یہ برداشت گروپ قائم کیا گیا, آپ کو کیسا لگتا ہے برداشت گروپ میں ان ساتھیوں سے جس کو بھول گئے تھے, یا پھر آپ ان سے ملا کرتے تھے کبھی, آج روز برداشت گروپ میں دیکھتے ہیں, کیسا لگا آپ کو یہ برداشت گروپ قائم کرنے کا جو مقصد جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھی جو بچپن کے دوست احباب آج تمہارے قریب میں ہیں, جس کو جب چاہے سن سکتے ہیں, آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ برسوں کے بعد ایک جب ملاقات ہوئی تو عجیب میں ایک ہی بات بولتا ہوں, میں شیخ محمد زبیدی کے شادی کے ولیمے کے بعد میں 3 سال پہلے ملاقات ہوئی ہے میری. اتنا عرصہ میں یہیں پر ہوں, وہ بھی اکثر آتے جاتے, لیکن اس کے باوجود ہی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. مگر میں ایک بات آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ کو اکثر و بیشتر یاد کیا جاتا ہے. نہیں الحمدللہ ایسی بات نہیں, ہمارے صدر برداشت گروپ محمد علی زبیدی کسی کو نہیں بھولا. ہاں اگر جس کو بھول بھی گیا ہے تو اس سے ملاقات ہونے پہ ایک ہی نظر میں پہچان لیتا تھا کہ یہ فلان بن فلاں ہیں. یہ اس کی محبت, یہ اس کی میں کیا بولتا ہوں دلچسپی, جو آج وہ دور چلتا ہوا اس کے بچپن کی جو ایکٹیویٹیز تھیں, یہ برداشت گروپ بنا. ہم بھی کبھی نہیں بھولے, ملاقات نہیں بھولے, لیکن آپ پوچھیں کیسے نہیں بھولے. شیخ محمد بن علی زبیدی کی کتابت انہوں نے یا اللہ یا محمد ہمہ رنگی کلر میں اس دور میں آج سے 40-45 سال پہلے لکھی تھی, اور وہ اس کے بعد میں مسجد نورن میں اس سے تغرے بنے ہوئے لگے ہوئے تھے. اور جب بھی اس کو دیتے ہم شیخ محمد زبیدی یاد کرتے ہیں. جب شروع سے آپ خطاط تھے؟ ہاں, اور جہاں کہیں بھی خطاط یا کوئی تذکر آتا تو شیخ محمد زبیدی کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. کیونکہ حیدرآباد میں کئی بڑے بڑے خطاط تھے. ایک نعیم خطاط, تو انہوں جو ہے حالیہ عرصے میں وہ ایک ہی قلم سے ملٹی کلر لکھنے کا جو آغاز کیے, میں نہیں دیکھا ان کے ساتھ. اس وقت مجھے یاد آتا تھا, اور میں نے نعیم الخطاط صاحب سے جب گفتگو ہوئی تو بولا یہ آپ ملٹی کلر آج کر رہے ہیں, وہ پینسلوں کے در میں ہمارے شیخ محمد زبیدی جو ملٹی کلر یا اللہ یا محمد, اور وہ حالیہ عرصے تک مسجد نورین میں لگے ہوئے تھے وہ تغرے. وہ ایک دور ایسا دور تھا, ایک تو معیشیت سے بہت تنگ تھے. اس دور میں بھی محمد علی زبیدی نے اپنی حاجت کو, اپنی قلموں کو خود تراشتا تھا, خود بناتا تھا, اپنے کام پورے کرتا تھا. وہ تو ہم دیکھے ہیں گھر کے اندر جا کے جو کمرہ تھا ان کا, اکثر گھنٹوں بیٹھتے تھے. جی, کئی طرح کے جو ہے مکتوبات جو شیخ محمد زبیدی لکھتے تھے, ڈیزائننگ جو کرتے تھے, آج بھی مجھے یاد ہے. واہ, جس میں وہ حالیہ 8-10 سال پہلے نورین میں سے وہ تغرے نکال دیا, ورنہ حالیہ عرصے تک وہ تغرے مسجد نورین میں لگے ہوئے تھے بارکس. واہ کیا بات ہے. وہ تغرہ کبھی ہمارے شیخ محمد زبیدی سے جدا نہیں کیا. کیا بات ہے یہ گو کہ ہم 30-40 سال دور رہے, نہیں ملے, لیکن اس کے وہ تغرہ نظر سے نہیں ہٹ رہا ابھی تک, اور آج بھی میری نظر میں ہے وہ. آج بھی میری نظر میں ہے وہ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. تو یہ جو ہے یہ دین شعبہ دینیت کے, شعبہ دینیت سے ہمارا جو خلوص تھا وہ اٹوٹ بندھن کبھی ٹوٹا نہ ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. بہت خوب. یحییٰ ناصر قریشی ہے جی, اور ایک مقبول بن عثمان تھے جو تھوڑا یہ گروپ سے ہٹے. بعد میں جب یہ لوگ باہر چلے گئے اس کے بعد مقبول بن عثمان, ہاشم بن محمد العیدروس اور حبیب سکندر بن حسین, یہ گروپ تھا ہمارا. جب تک یہاں پڑھتے ان لوگوں کے ساتھ مسلسل فجر کے بعد جیسا شعبدیات آتے تھے سی آر پی گراؤنڈ میں جانا, فٹ بال کھیلنا, اور 5 نماز کے بعد میں مسجد میں قرآن کے مقابلے, کون کتنا پڑھتا. اس وقت کی نایاب شخصیات, اس وقت کے بزرگوں کے کچھ یادیں؟ ان میں ایک اکبر شاہ میاں بلکہ تھے یہاں پر, میں سمجھتا ہوں اسی وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی. انتہائی بزرگ شخصیت. بس ان سے
जो बाद में हम पढ़े कि इनको देखे तो खुदा याद आता है या बोलते हैं, वैसी शख्सियत हमें अकबर में अशरफ बारकस की जो शख्सियत थे, इंतहाई जब भी उनसे मिलते तो मुशर्रफ से सर पे हाथ रखते और जेब में से हाथ डालते, कुछ गोली या कोई ऐसी चीज़ निकाल के हमारू देते थे। बिल्कुल दुरुस्त। मैं उस गली से कल गुजर रहा हूँ तो मुझे उनकी याद आई। मैंने कहा वो इस तरफ से आते थे जी। अकबर शाह नाम इतना शाह मुझे याद था, लेकिन अकबर अभी तुम्हारे कहने पे मुझे याद आया। अकबर भाई वली, आपका दौर हमारा दौर, जो हम लोगों ने उर्दू मीडियम से अपनी तालीम को पूरा किया, और आज हम अल्लाह का करम है कि हमारी जहाँ तक ज़रूरियात है, जहाँ भी हमको जाना पड़ता है, जहाँ हमें इंग्लिश करना पड़ता है, आज हम अपने आप को हल कर लेते हैं अपने मसाइल, बेहतरीन इंग्लिश भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन हो गई है, उस दौर के शोबे दिनियात और स्कूल की तालीम की आपकी जो कुछ आज तुम ये काबिलियत हासिल किए हैं, आज उर्दू और इंग्लिश की ज़रूरत की क्या आप फ़र्क महसूस करेंगे? उर्दू तो आज ख़त्म हो गई है, ख़त्म होती जा रही है और हर रोज़ ख़त्म कर रहे हैं। उसके अंदर जो उर्दू की खिदमत के दावेदार है, सबसे पहले वो लोग उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। उर्दू की वो लोग जो है इदारे चलाते हैं, जलसे करते हैं, लेकिन उनकी औलाद खुद जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है जी। उनके घर में कोई उर्दू जानने वाला नहीं है। और रहा इसका खिमाजा हमारा जो भुगतना पड़ रहा है, वो ये है कि हुकूमत के इदारों में उर्दू के नाम पर रोज़ी खाने वाले मौजूद है, लेकिन उर्दू के जो है हमारे वक्त तो हर जगह थी, हमारे वक्त तो हर जगह उर्दू ही थी, उर्दू मीडियम थे, कई स्कूल्स थे। आज हम वो देखते हैं कि कोई जगह पे नहीं है। उर्दू मीडियम तो ख़त्म ही कर दिया गया है जी। दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे उसके अंदर हमारे अपने हमने आप तो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने सुना है कि कई स्कूल खुले हैं आजकल उर्दू मीडियम के, क्या ये कहाँ तक सही है? नहीं, उर्दू मीडियम में कोई स्कूल नहीं खुला है। सिर्फ आजकल हुकूमत जो है टेमरिस के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है, मॉडर्न स्कूल्स को। एक का सब्जेक्ट भी नहीं है आजकल स्कूल, एक सब्जेक्ट है वो, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में जो पढ़ाने वाले, जहाँ हमारे दौर में सिर्फ इंग्लिश एक तेलुगु एक सब्जेक्ट नहीं, आप ताजुब करेंगे कई रिक्रूटमेंट जो आजकल हो रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है जो मुल्क की सबसे बड़ी पहली उर्दू की यूनिवर्सिटी अब है। पहले उस्मान यूनिवर्सिटी थी, वो ख़त्म होने आज जो गवर्नमेंट कायम की है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैकल्टीज़ को अपॉइंट असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है, उसमें से 40% उर्दू नहीं जानते, लिखना और पढ़ना। क्या बात। रिसेंटली आपका बयान आया था, मैंने वाइस चांसलर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाद में उन्होंने फिर रिटायरमेंट भी ले लिया अपना। नहीं, रिटायरमेंट नहीं लिया उन्होंने, वाइस चांसलर अभी है, अभी है, मगर उन्होंने बात करने से मैं उनसे उसका मैं अखबारी रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। आप जिस वक्त हमारे ग्रुप में पेश किए थे उनको, वेरी नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद मैंने रिजाइन करने का ऐलान किए थे। कुछ आपसी चांसलर से उनके इख्तलाफात की बुनियाद पर रिजाइन कर, लेकिन रिजाइन नहीं हुआ वो। चले ठीक। तो मैं उनसे और एक तफसीली इंटरव्यू चाह रहा था ये बात करने, लेकिन वो कतराते हुए मुझे आज 2 महीने से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, साहब बाहर है, बिजी है, वैसे टाल दे रहे हैं। आप जैसे 40% भागते होंगे, आप जैसे सहाफ़ियों से कब किस वक्त कस देते हैं सवाल। यूनिवर्सिटी का जो बजट है 40% ऐसों पे जा रहा है जो उर्दू नहीं, और उनका तकर्रुर हुआ है उर्दू के ऊपर, उनकी ड्यूटी है उर्दू पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ाते टीचिंग करते हैं इंग्लिश के अंदर। है वाली मोहम्मद अली ज़ुबैदी का एक मेन मकसद भी ये है, क्योंकि 40-45 साल हो गया हम लोगों को भी बाहर जाके, घर का माहौल बिल्कुल अरबी का है, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद अली ज़ुबैदी ये चाहते हैं कि उर्दू क़ायम और दायम रहे। दौलतुल इमारात से इन्होंने ये कदम उठाया है जहाँ पर हमारा सारा माहौल अरबी है। इसको लेकर आप कहाँ तक हौसला देंगे कि बर्दाश्त ग्रुप उर्दू की बक़ा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए स्कोप्स हैं, यहाँ पर वसाइल भी हैं उसके लिए जी। अगर चाहे तो उसको बहुत बड़ा, एक तो रोज़नामा सियासत इस सिलसिले में बहुत काम कर रहा है, उसकी खिदमत से भी अपन इस्तेफादा कर सकते हैं। उर्दू एकेडमी है रियासती, अब जो चेयरमैन है वो कुछ करना चाहते हैं, अगर चाहे तो उनके इश्तराक से हम कर सकते हैं उसके लिए काम। जी जी। आखिरी एक सवाल आपसे, हमारे ग्रुप में हमारे जो डॉक्टर ब्रदर्स हैं, इनकी खिदमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों हम सुने थे कि आप भी बड़े, अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत दे। ये दोनों तो खैर मेरे बचपन के साथियाँ हैं, ये दोस्ताना बल घर के माहौल है, इफ्तिखार है। मैं एक चंद एग्जांपल देता हूँ जी। औसतन 300 से 400 पेशेंट को रोज़ाना देखते हैं जी।
आज के दौर में जब मेडिकल सेहत डॉक्टरी इतनी महंगी हो गई है, ऐसे में इफ्तिखार के पास की दवा जो उन पेशेंट देखते हैं जी 50-60 रुपये, वो भी 30% उनके पास ये है कि 30% पेशेंट से बगैर पैसे लेके दवाएं देते हैं। जी उसके अलावा ये है कि अगर हबीब सपोज उसको ये दवा दूध के साथ खाना है, जी हबीब की हैसियत दूध की नहीं है, तो हाँ, दूध के पैसों के साथ दवा दी जाती है। जियो डॉक्टर इफ्तिखार, जियो डॉक्टर इफ्तिखार जी। आज भी 30 to 40% पेशेंट जो इफ्तिखार के हैं बगैर पैसों के दवा दी जाती है वहाँ पे। जी फजल का हिसाब अलग है। फजल के पास चूँकि ज़्यादातर यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर जो दवाएं बनाते हैं वो दवाएं भी उन अपने जानने वालों को जिसकी ज़रूरत है, और रहा अपने अहबाब की हद तक तो सिर्फ दवा दे दे के खामोश बैठे हैं, उनकी पूरे हाल चाल कैफियत दरियाफ्त करना है इन दोनों का भाइयों का। आज डॉक्टर फजल साहब को बर्दाश्त ग्रुप की शुरुआत और उनको मेंबर ऑफ द ईयर 2019 से हमारे सदर साहब ने नवाजा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे फ़ख्र है कि मेरे दोस्त के ऊपर मुझे जो है मैं वो बयान नहीं तो कर सकता। इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी शख्सियत है ये जिनको तो हर रोज़ मैं हमेशा- देखते रहता हूँ। हमेशा नवाजा जाता है, लेकिन आज बर्दाश्त ग्रुप की एक ऐसी शख्सियत जिसको बर्दाश्त ग्रुप को लेकर उन्होंने कोने कोनों तक पहुंचा दिया है, ये बड़ी फ़ख्रिया बात है हमारे लिए। बिल्कुल। और इनके जो राय आती है तिब्बी तौर पे, वो जिससे हमारा ग्रुप और हमारे ग्रुप के फैमिलीज़ उससे इस्तेफादा करते हैं। जी हाँ। इनकी अपनी एक्टिविटीज़ जो इतने डॉक्टर होने के बावजूद भी बर्दाश्त ग्रुप को इतना वक्त देते हैं, इस पे हमको फ़ख्र है। और ये फ़ैसला हमारे सदर साहब ने लिया है जिससे हम तमाम को फ़ख्र है। और हम आखिर में आपसे सुनना चाहेंगे बर्दाश्त ग्रुप के बारे में कि सबसे पहले मुझे ताज्जुब भी होता है कि फजल और इफ्तिखार का वक्त कहाँ से मिलता। ऐसा महसूस होता है वो वक्त को खींच के जैसा इलास्टिक से एलाबरेट किया जाता है जी। वैसा वक्त को निकाल के वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम इस बात को समझते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ दिन भर की मेरी मसरूफियत के बाद में मुझे चंद मिनट का वक्त भी देना महाल लगता है। जी जी। और 2-4 मरतबा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं जो है ग्रुप के अंदर बासिज़ है जो मिली मसाइल उससे मुताल्लिक़ है, मैं औक़ात को नज़र चूँकि इतना मेरे जहन में नहीं रहता है कौन से वक्त पे क्या डालना है, जी आए डाल दिया तब भी मुझे आई है। मैं ये देखता हूँ कि ये लोग किस तरीके से वक्त उसका रखते हैं, वो वक्त का ख्याल करते हुए उसको जो वो करते हैं पूरा। जी, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं और सियासत से हम दूर हैं। ये एक मजबूरी है क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं, उसके तमाम कानून का एहतराम करना पड़ता है। लाजमी है। आप नेशनलिटी की भी आप जानते हैं कि मेरे भाई की नेशनलिटी वहाँ की है, वहाँ के तमाम तर क़वानीन और उसके नज़्म ज़ब्त का एहतराम करना लाज़मी पड़ता है, है। बिल्कुल ज़रूरी है। एडमिन की एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हम अपने आप को सियासत से दूर इसलिए रखे हैं, हम ये नहीं चाहते। आपके लिए हम सब हैं, हमारे पास आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप को भेज सकते हैं, जो क्लिप चाहे बर वक्त चाहे। आपने कहा है कि भाई मुझे एक ऐसा वक्त नहीं मिलता कि मैं आपको तमाम को आगाह करूं, हम हैं, हमको आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। हम आपकी भेजी हुई क्लिप को हमारे बर्दाश्त ग्रुप में अगर हम तक हमारे बनाए हुए उसूलों पे अगर उतरती है तो हम ज़रूर पेश करेंगे, वरना हम आपकी भेजी हुई क्लिप से इस्तेफादा ज़रूर करेंगे। हम आपसे फिर एक बार इल्तिजा करते हैं और आज हम हमारे सदर साहब को ज़रूर इस बात का एहसास भी दिलाएंगे। आज हम दोबारा हमारे भाई को हमारे साथ रखेंगे और हमारी गुजारिश है कि आप हमारे क़वानीन का एहतराम कर लीजिए ताकि नज़्म ज़ब्त क़ायम व दायम रहे। हम मजबूर हैं हमसे जी। सही है। तो आखिर में अजीज़ों, दोस्तों, साथियों, ये थे हैदराबाद की जानी मानी शख्सियत, बारकस की मशहूर व मारूफ शख्सियत हबीब अली बिन मोहम्मद जिलानी, एक बेहतरीन सहाफ़ी और एक सीनियर जर्नलिस्ट जिसको हमने बर्दाश्त ग्रुप में आज उनसे कुछ बातें करने का मौका मिला। हम हवेली के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बर्दाश्त ग्रुप ने अपने ख्यालात का इज़हार किए। बहुत बहुत शुक्रिया। मास्सलाम। गुनाह करो
गुनाह करो